Very warm good morning everyone. Today we'll be doing William James, right? So we'll be studying about William James in the School of Functionalism. Let's start. So in the beginning we'll give some introduction where we will write about the antecedents what led to functionalist school, emergence of functionalist school. So सबसे पहले आप लिखोगे कि 1886 में John Dewey was the one who published a book called Psychology, and that marked the beginning of this school of thought, right? 1886 में सबसे पहले जॉन ड्यूवे ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था साइकोलॉजी, राइट? साइकोलॉजी डिस्क्राइब द न्यू एम्पेरिकल साइंस. सो ये बुक जो थी ये हमारी साइकोलॉजी को एज एन एम्पेरिकल साइंस डिस्क्राइब करती है, ठीक है? ये सबसे पहला पॉइंट. देन सेकेंड पॉइंट इज इन 1887 केम द फर्स्ट इशू ऑफ अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी. सो 1887 में अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का पहला इशू आया, ठीक है? अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकोलॉजी का फर्स्ट इशू आया, एंड the first psychology journal it was in United States. Then in 1890, third point is 1890 में विलियम जेम्स की बुक पब्लिश हुई द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, राइट? फिर 1890 में हम देखते हैं कि विलियम जेम्स ने अपनी बुक पब्लिश की दैट वाज कॉल्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. All these events mark the beginning of psychology that emphasizes on individual differences, adaptation to the environment and practicality. Now this school of thought is quite unique for the way because क्योंकि यहाँ पर हम individuality की बात करते हैं, ठीक है? ये school of thought individuality की बात करता है, individual differences की बात करता है. सबसे पहले तो it talks about how एक organism adapt करता है to his or her environment, and it talks about practicality, right? एक ऐसी साइकोलॉजी जो परफेक्टली कंपैटिबल थी एवोल्यूशनरी थ्योरी के. ये कैसी साइकोलॉजी है ना, जो कहीं ना कहीं एवोल्यूशनरी थ्योरी की बात करती है. सो टू रिपीट आई विल से कि 1890 में उनकी बुक आई थी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी. दिस इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट दैट फोकसेस मोर ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ऑन प्रैक्टिकलिटी, ऑन how the individual adapts to the environment. So it talks about the evolutionary theory in much detail, right? So इसमें हम evolutionary theory की बात करेंगे, ऐसा school of thought ये है. Next is during this stage, अब अलग अलग stages थी functionalism की. तो ऐसी एक स्टेज के अकॉर्डिंग जब यूएस में फंक्शनलिज्म जो है वो फैलाव होगा उसका, तो यूएस फंक्शनलिज्म एम्फसाइज्ड ऑन साइंस, राइट, on practicality, on emphasis of individual differences, and this theory then combined into the school of functionalism. So US functionalism emphasizes this school as a science पे focus है, individual differences पे focus है, right? How individual adapts, it is also focus. So this became as a theory that combined the school of functionalism. पूरी तरह से इस तरीके से लगाया गया, ठीक है? नेक्स्ट इज 1896 में जॉन ड्यूवे ने अपना ये आर्टिकल पब्लिश किया जिसका नाम था द रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है? ये रिफ्लेक्स आर्क नाम का एक आर्टिकल 1896 में उन्होंने पब्लिश किया, जॉन ड्यूवे ने, ठीक है? 1896 में हिज आर्टिकल केम दैट वाज नेम्ड एज द रिफ्लेक्स आर्क ऑफ साइकोलॉजी, राइट? The reflex arc of psychology, and then others mark the functionalism with 1890, है ना, the publication of William James की बुक. कई लोग कहते हैं कि 1890 में जो किताब आई थी विलियम जेम्स की the principles of psychology, that was where this school of thought जो है वो start हुआ. Next is the functionalist. For the functionalists, the assumption concerning the mind were derived from evolutionary theory. हाँ, हम देखते हैं कि functionalist लोगों के लिए जो mind है वो as an evolutionary theory से derive हुआ है. We know this, right? The goal of psychology for them was to understand how the mind and the behavior works, right? उनके लिए psychology का goal है कि mind और behavior कैसे
वर्क करता है इन एडिंग ऑर्गेनिजम्स एडजस्टमेंट टू द इन्वायरमेंट, कैसे हेल्प करता है इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिज्म को एडजस्ट करने के लिए, राइट। तो फंक्शनलिस्ट लोगों ने फोकस ही किया है, their assumption is based on evolutionary theory, ठीक है, कि how the goal of psychology is to understand कि how the mind and the behavior work in aiding the organism's survival, organisms का adaptation to the environment, adjustment to the environment कैसे aid होता है. Research tools included anything that was informative, including the use of introspection, study of animal and study of mentally ill. So इन लोगों ने as in they used every kind of research method that was possible, कुछ भी जो informative है, like the use of introspection was there, animal behavior, mentally ill, सबको study किया उन्होंने. Next we come on to the characteristics of the functionalist school of psychology. Okay, हम अब इसकी बात करेंगे. The functionalists opposed what they considered the sterile search for the elements of consciousness in the structure, in which the structure is in. तो इनके अकॉर्डिंग ये जो एलिमेंट्स ऑफ कॉन्शियसनेस है, अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं तो ये बहुत ही स्टेराइल है. वाई? बिकॉज कहीं ना कहीं हम उसमें सो फंक्शनिस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द माइंड रादर दैन कोई स्टैटिक सी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दी उसके कंटेंट या मेंटल एलिमेंट्स की. वो फंक्शन को समझना चाहते थे माइंड की, और उनका ये बिलीफ था कि मेंटल प्रोसेसेस का कोई ना कोई फंक्शन है, और वो फंक्शन क्या है? टू एड द ऑर्गेनिज्म इन अडैप्टिंग टू हिज और हर एनवायरनमेंट. दे वर इंटरेस्टेड इन द इज फॉर ऑफ द माइंड रादर देन द इज ऑफ द माइंड, सो दे वर लुकिंग फॉर द फंक्शन रादर देन द स्ट्रक्चर. ओके, नेक्स्ट इज द फंक्शनलिस्ट वांटेड साइकोलॉजी टू बी अ प्रैक्टिकल साइंस एंड नॉट अ प्योर साइंस. फंक्शनलिस्ट लोग चाहते थे कि साइकोलॉजी एक प्रैक्टिकल साइंस हो, ना कि प्योर साइंस. दे सॉट टू अप्लाई देयर फाइंडिंग्स टू इम्प्रूव द पर्सनल लाइफ, एजुकेशन, इंडस्ट्री. तो अपनी फाइंडिंग्स को वो पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, एजुकेशन, इंडस्ट्री को इम्प्रूव करने के लिए लगाना चाहते थे. ठीक है, सो दे वांटेड साइकोलॉजी टू बी अ प्रैक्टिकल साइंस रादर देन अ प्योर साइंस. ठीक है, प्रैक्टिकल साइंस बनाना चाहते थे. उसको उसकी फाइंडिंग्स को अप्लाई करके पर्सनल लाइफ, एजुकेशन, इंडस्ट्री इम्प्रूव करना चाहते थे. स्ट्रक्चरलिस्ट तो सिर्फ प्रैक्टिकलिटी को अवॉइड ही करते मिल रहे थे अभी तक हमें. ठीक है, द फंक्शनलिस्ट अर्ज द ब्रॉडनिंग ऑफ साइकोलॉजी. तो उन्होंने साइकोलॉजी के स्कोप को ब्रॉड किया, एज दे इंक्लूडेड रिसर्च ऑन एनिमल्स, ऑन चिल्ड्रंस, ऑन एबनॉर्मल ह्यूमंस. So even they broadened the methodology of psychology, like anything that was useful was used, like puzzle box, maze, mental test, सब कुछ उन्होंने use किया. They were interested in the why of the mental processes and behavior, and they how it was concerned with the motivation. Organism differently act करेगा एक ही environment में, अगर उसकी needs change होगी, सो ज़रूरी है कि इन नीड्स को भी अंडरस्टैंड किया जाए अकॉर्डिंग टू देम. राइट, द फंक्शनलिस्ट एक्सेप्टेड बोथ मेंटल प्रोसेसेस एंड बिहेवियर. तो फंक्शनलिस्ट लोगों ने क्या किया? मेंटल प्रोसेसेस और बिहेवियर दोनों को ही एज एन लेजिटिमेट मेथड माना साइकोलॉजी में, सब्जेक्ट मैटर. राइट, एंड मोस्ट ऑफ देम व्यूड इंट्रोस्पेक्शन एज वन ऑफ द मेनी वैलिड रिसर्च टूल. They were more interested in what made organism different from what made them similar. तो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करते थे कि क्या चीज़ें इंडिविजुअल्स को अलग बनाती एक दूसरे से. ऑल द फंक्शनलिस्ट वर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विलियम जेम्स से इन्फ्लुएंस थे, और विलियम जेम्स खुद डार्विन से इन्फ्लुएंस थे. तो कहीं ना कहीं ये पूरा ऐसे चल रहा था. देन कम्स विलियम जेम्स का कंट्रीब्यूशन क्या रहा साइकोलॉजी में. ओके, सो विलियम जेम्स पब्लिश्ड हिज बुक कॉल्ड प्रिंसिपल्स. राइट, एंड ही वाज रिगार्डेड एज साइकोलॉजिकल पोप ऑफ द न्यू वर्ल्ड. ही एक्सेप्टेड डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन. बहुत लाइक उनका बिलीफ था डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पे, एज वेल एज ही बिलीव्ड इन फ्री विल. सो बिगिनिंग ऑफ जेम्स प्रैग्मेटिज्म. तो सबसे पहले उन्होंने बात की एक थॉट्स की जो कि है प्रैग्मेटिज्म. इसके बारे में हम चर्चा करते हैं. प्रैग्मेटिज्म मीन्स द बिलीफ दैट इफ एन आइडिया वर्क्स देन इट इज़ वैलिड, एंड द अल्टीमेट क्राइटेरियन फॉर जजिंग एन आइडिया वुड बी इट्स यूजफुलनेस एंड कैश वैल्यू. यूजफुलनेस ऑफ आइडिया या उसकी जो कैश वैल्यू है
दैट डिटरमाइंस कि वो आइडिया काम आएगा या नहीं काम आएगा, ठीक है. So, while using the scientific method in psychology, he said it was necessary to assume that human behavior is determined. अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, साइंटिफिक मेथड की यूज़ कर रहे हैं अगर हम साइकोलॉजी में, तो बहुत ज़रूरी है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि ह्यूमन बिहेवियर कहीं ना कहीं डिटरमाइंड है. इससे पहले पॉइंट में एज आई टोल्ड यू कि प्रैग्मेटिज्म की बात की हमने. प्रैग्मेटिज्म का मतलब है इफ़ एन आइडिया वर्क्स then it will be carried forward. If it has a cash value, if it is useful, then it will be worth considering, right? It is valid. Whereas if we talk about the scientific method of psychology, like it is necessary to assume that human behavior is determined. So they kind of considers this कि human behavior जो है वो काफ़ी determined है, ठीक है. नेसेसरी है साइंटिफिक मेथड अगर हम अप्लाई करते हैं तो इट्स नेसेसरी टू अज्यूम कि ह्यूमन बिहेवियर डिटरमाइंड. एज यूजफुल एज द अजम्पशन. नाउ सर्टेन जैसे कुछ मेटाफिजिकल क्वेश्चंस होते हैं जो साइंस के बियॉन्ड होते हैं और उसके लिए एक सब्जेक्टिव अप्रोच चाहिए उनको डील करने के लिए. तो जेम्स के अकॉर्डिंग scientific and philosophical both the methods should be used to study human behavior and thought. So according to him, both the methods should be used, scientific methods should be used and philosophical approach should also be used, because philosophy से हम subjective जो भी चीज़ें हैं subjective approach है ना ये, तो philosophical approach का यूज़ होना भी ज़रूरी है और scientific method का भी यूज़ होना ज़रूरी है, so as to study the human behavior and thought. Now James proposed radical empiricism. Radical empiricism क्या कहता है? All consistently reported aspects of human behavior are worthy of study. कि जो भी this idea of radical empiricism is just as simple that everything that is reported, right? All consistently reported जो stimuli हैं, all consistently reported aspects जो हैं, जो भी सारे कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन बिहेवियर के, ह्यूमन एक्सपीरियंस के, दे वर्दी ऑफ स्टडी, राइट. दैट्स व्हाट ही सेड कि ऑल कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड आइडियाज, ऑल कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस आर वर्दी ऑफ स्टडी. हमने पहले भी पढ़ा ये 1890 में जेम्स ने अपनी बुक निकाली द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, दैट काइंड ऑफ रेवोल्यूशनराइज्ड द स्कूल एवरीथिंग इन साइकोलॉजी, राइट. And if we talk about the themes that he used the theme of practicality, pragmatism, and he even focused on individuality, right. And then he used radical empiricism. So he was even अगर हम बाकी आइडियाज़ में बात करें तो जेम्स इज़ ऑलवेज विलिंग टू एंटरटेन अ वैरायटी ऑफ आइडियाज़ रेंजिंग फ्रॉम रिलीजन, मिस्टिसिज्म, फेथ, heal, psychic phenomena to the most rigorous scientific facts, methods available at the time. So he kind of, and अगर वो radical empiricism में belief रखता था, वो तो बस ये है कि consistently reported जो भी information about the human experience that will be considered. I'm not sure if it's information. Aspects of human experience are worthy of study. So yeah, that's what he meant. सो इस रेडिकल एम्पेरिसिज्म के आइडिया के कारण हम कहते हैं कि जेम्स रेडिकल एम्पेरिसिज्म, प्रैक्टिकलिटी, इंडिविजुअलिटी को परमिएट कर रहे थे अपनी राइटिंग्स में. एंड ही इवन फोकस्ड लाइक हिज वेराइटी, हिज फोकस वाज ऑन, ही वाज विलिंग टू एड्रेस टू अ लॉट ऑफ टॉपिक्स लाइक फ्रॉम रेंजिंग फ्रॉम रिलीजन टू मिस्टिसिज्म टू फेटलिज्म टू faith healing to psychic phenomena and everything, right? Religion, mysticism, faith healing, psychic phenomena, and even the rigorous scientific methods that were applied for the study of psychology, right? Now, opposition of Wundt's school of psychology, let's talk about that also. So opposition to Wundt's approach. Let's talk about so he kind of Wundt ने जो भी कहा उनसे opposite ही थे mostly इनके ideas. And if you talk about stream of consciousness, then with the concept of stream of consciousness, James opposed that those who were busy searching for the elements of thought, like they are not doing the correct work. He kind of opposed that idea.
He opposed those people who were searching for the elements of thought. According to him, consciousness personal है and it reflects an experience of the individual, and it's very foolhardy for the person to study right the elements common to all minds. उनकी search ही एक foolish act है according to him. So he believed consciousness क्या है, personal है, and study of this search of elements of consciousness is kind of foolhardy. Then he believed कि consciousness जो है वो continuous है, right? Continuous है. It cannot be divided up for analysis. हम उसको divide नहीं कर सकते analysis के लिए. The third thing is consciousness is a constantly changing. Even though consciousness is continuous, it can be characterized as a stream that is steady from birth to death. हम कहते हैं कि consciousness उनके according constant एक change consciousness में आता रहता था, तो ये काइंड ऑफ कॉन्स्टेंटली चेंज वाली चीज़ है, ठीक है, बार बार चेंज होती रहती है कॉन्शियसनेस, राइट. इट्स अ हम कहते हैं कि इट्स अ स्टेडी स्ट्रीम फ्रॉम बर्थ टू डेथ, बट इट्स समथिंग दैट कॉन्स्टेंटली चेंजेस, राइट. फॉर जेम्स द सेम इज़ ट्रू फॉर कॉन्शियस एक्सपीरियंस. One can never have exactly the same idea twice because the stream of consciousness that provides the context is if an idea is ever changing, right? क्योंकि वो one cannot step into the same waters, the same idea goes with it, right? Then comes the fourth, consciousness selective है. That means that some of the events that enter into consciousness are selected for further consideration while others are inhibited, तो वो काफ़ी selective है. So consciousness involves selection of some ideas and suppression of the rest, ठीक है. तो कुछ आइडियाज़ सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ इनहिबिट हो जाते हैं. फाइनली कॉन्शियसनेस को लास्ट में 5वां पॉइंट है कि कॉन्शियसनेस फंक्शनल है. ये उनकी फ़िलासफ़ी ऑफ प्रैग्मेटिज्म से ही इन्फ्लुएंस्ड है, बिकॉज द आइडिया परमेट्स ऑल ऑफ जेम्स राइटिंग एट दिस पॉइंट फ्रॉम द स्कूल ऑफ थॉट. यहाँ से ही फंक्शनलिज्म डेवलप हुआ है, क्योंकि अगर कॉन्शियसनेस फंक्शनल नहीं है, उसका कोई रोल नहीं है, उसकी कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है, तो वो तो फोकस ही नहीं होता है स्कूल ऑफ थॉट का. तो यहाँ इसका मतलब है कॉन्शियसनेस फंक्शनल है. दिस आइडिया परमेट्स ऑल ऑफ जेम्स राइटिंग एंड पॉइंट्स आउट द स्कूल ऑफ फंक्शनलिज्म. दैट्स हाउ द स्कूल काइंड ऑफ डेवलप्ड. So consciousness has this purpose to aid the individual in adapting to the environment. So according to James, it was a stream of thought. Consciousness एक stream of thought की तरह है. जेम्स फर्स्ट मेंशन द स्ट्रीम ऑफ थॉट, ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इस शब्द का उन्होंने सबसे पहले अपने इन 1884 में एक आर्टिकल ऑन सम ओमिशंस ऑफ इंट्रोस्पेक्टिव साइकोलॉजी पे में लिखा था इसके बारे में, ठीक है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कि हाउ ही टॉक्ड अबाउट हैबिट्स एंड इंस्टिंक्ट्स. नाउ जेम्स बिलीव दैट मच ऑफ द ह्यूमन एनिमल बिहेवियर इज़ गवर्न्ड बाय द इंस्टिंक्ट. सो हमारा काफ़ी बिहेवियर इंस्टिंक्ट से गवर्नड है, ह्यूमन बिहेवियर हो चाहे एनिमल बिहेवियर हो. और जेम्स डज नॉट बिलीव दैट इंस्टिंक्टिव बिहेवियर ब्लाइंड होता है या वेरिएबल होता है. ही काइंड ऑफ बिलीव दैट सच बिहेवियर इज़ मॉडिफाइबल होता है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर. like he believed that new instinct like patterns of behavior develop in the lifetime of the organism, और इन्हीं न्यू इंस्टिंक्ट लाइक पैटर्न्स जो बने हैं उनको उन्होंने नाम दिया एज हैबिट्स. सो अकॉर्डिंग टू जेम्स, हैबिट्स आर फॉर्म्स एज द एक्टिविटी. अगर कोई भी एक्टिविटी रिपीट होगी तो हैबिट्स फॉर्म होंगी. रेपिटेशन के कारण न्यूरल पाथवेज फॉर्म कर जो विद इन द ब्रेन होते हैं वो काइंड ऑफ इंट्रेंच हो जाते हैं एंड दे मेक इट ईजियर फॉर द एनर्जी टू पास थ्रू दोज पाथवेज. सो जेम्स हैड अ ये न्यूरोफिजियोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन ही होगी कि न्यूरल पाथवेज एंट्रेंच हो रहे हैं, एनर्जी पास ऑन हो रही है, तो न्यूरो है और फिजियोलॉजिकल भी है. His neurophysiological account of learning was very close to Pavlov's. तो according to him, habits भी functional होती हैं because they simplify the movements required to achieve a result. तो उनके according हैबिट्स फंक्शनल होती हैं, और अगर फंक्शनल है तभी फंक्शनलिज्म में है, अगर नहीं होती तो वो हटा देते इसको. तो हैबिट्स फंक्शनल होती हैं बिकॉज दे सिंप्लीफाई द मूवमेंट्स. ये मूवमेंट्स को सिंप्लीफाई करती हैं दैट आर रिक्वायर्ड टू अचीव अ रिजल्ट. ठीक है, मूवमेंट्स हमारी सिंप्लीफाई कर देती है हमारी हैबिट्स, जो किसी भी रिजल्ट तक हमें पहुंचाती है.
दे इवन इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर की एक्यूरेसी को इंक्रीज कर देता है हैबिट हमारी. इवन रिड्यूसेस फैटीग एंड डिमिनिशेस द नीड टू कॉन्शियसली अटेंड टू परफॉर्म्ड एक्शंस. हमारी नीड कॉन्शियसली अटेंड करना it kind of diminishes the need to consciously attend to performed actions. बिकॉज अब जब हैबिट फॉर्म हो जाती है तो हमें उस पर कॉन्शियसली एफर्ट नहीं देना पड़ता. एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हो ड्राइविंग का, जैसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि ड्राइविंग पहले कॉन्शियसली सीखनी पड़ती है, देन एज द हैबिट स्किल डेवलप होती है तो हैबिट फॉर्म हो जाती है एंड देन वी लर्न हाउ टू ड्राइव. देन कम्स द सेल्फ. Now James discussed what he called the empirical self, the me of the personality, which consists of everything a person calls his or her. Everything that a person could call his or her own. So in the widest possible sense, जो me है वो empirical self एक sum total है of whatever he can call his or her. Like उसकी अपनी body, उसकी psychic powers, उसकी clothes, उसके house, wife, children, ancestors, friends, reputation, work, his lands, horse, yacht and bank accounts, everything that the person can call his. मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फ्रेंड्स, मेरी रेपुटेशन, मेरा वर्क, माई हाउस, everything that the person can call his. So this me, this empirical self is divided into 3 components. एक material self है, एक social self है, एक spiritual self है. ठीक है. मटीरियल सेल्फ कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट अ पर्सन कैन कॉल हिज और हर ओन. जो मटीरियल चीज़ें हैं जैसे उसकी बॉडी हो गई, फैमिली होगी, प्रॉपर्टी हो गई. एंड सोशल सेल्फ इज़ द सेल्फ दैट इज़ नोन बाय अदर्स, राइट. जो दूसरों के द्वारा जो जानी गई सेल्फ है वो सोशल सेल्फ होती है. एक पर्सन की उतनी सोशल सेल्फ होती है जितने इंडिविजुअल्स को रिकग्नाइज कर सकते हैं, जितने इंडिविजुअल्स एक इमेज कैरी कर रहे हैं उस व्यक्ति के अपने माइंड में. और स्पिरिचुअल सेल्फ कंसिस्ट करती है पर्सन की खुद की स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को. एवरीथिंग दैट वी नो ऑफ ourselves about ourselves as thinkers. Spiritual selves में all the emotions that are associated with various selves, various states of consciousness जो भी हैं वो सारे आ जाते हैं. ठीक है. all the emotions that are associated with various states of consciousness. Spiritual self has to do with the experience of one subjective reality. एक व्यक्ति की subjective reality से ज़्यादा linked है. Next topic that we have is self as a knower. Right? The empirical self, the me, is the person as known by himself or herself, as we have already talked about it. But there's एक और aspect है self का, that does the knowing, जो इस चीज़ में, इस सारे process में जान रहा है, जानकार बन रहा है. और वही I है, the person that does the knowing, right? The self for James is partly known, partly the knower, partly the object and partly the subject. James admitted that dealing with me is easier and dealing with I is much harder, right? I को pure ego भी कहा है. James struggled with his own concept of self as a knower, and he admitted that it's more or less similar to the older philosophical and theological notions like soul, spirit या फिर transcendental ego की तरह ही है उनका ये concept. Then self-esteem. James was among the first persons to examine the characteristics. Like he concluded कि self-esteem क्या है? The ratio of things that are attempted upon the ratio of things that have been achieved. अगर कोई अटैम्प्ट नहीं करेगा कोई फेलियर नहीं होगा, कोई फेलियर नहीं होगा कोई ह्यूमिलिएशन नहीं होगी. जो ये सेल्फ है, द सेल्फ एस्टीम डिपेंड्स इंटायरली ऑन हाउ वी बैक आवरसेल्व्स टू डू समथिंग, टू बी एंड टू डू. सो सेल्फ एस्टीम इज डिटरमाइंड बाय द रेशियो ऑफ आवर एक्चुअलिटीज़ टू द सपोज्ड पोटेंशियलिटीज़. यू नो, इसमें हमारे फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर में हमारी प्रिटेंशंस आती हैं एंड न्यूमरेटर में सक्सेस आ रहा है. या सक्सेस ऊपर है, प्रिटेंशंस उनके बिल्कुल ऐसे नीचे हैं, राइट. सक्सेस अपॉन प्रिटेंशंस. विलियम जेम्स सेड कि सेल्फ एस्टीम को इंक्रीज करने के लिए यू कैन डू 2 थिंग्स. आइदर यू ट्राई टू सक्सीड मोर, राइट, और यू अटेम्प्ट कि प्रिटेंशंस को आप कम कर दो. ये 2 चीज़ें की जा सकती हैं. Then he gave his another theory about emotions, right, जिसको जेम्स लैंच थ्योरी कहते हैं, बहुत पॉपुलर थ्योरी है.
ही इवन रिवर्स द ट्रेडिशनल बिलीफ कि इमोशंस जो है दे रिजल्ट फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ द इवेंट, राइट। सो ई पी नहीं है उनके अकॉर्डिंग, इमोशंस के वजह से परसेप्शन नहीं है, इमोशन रिजल्ट्स फ्रॉम परसेप्शन ऑफ एन इवेंट, ही काइंड ऑफ रिजेक्टेड इट कि इमोशंस are a result of perception of an event. He rejected this idea. जैसे जेम्स के अकॉर्डिंग अगर एक भालू हमने देखा, ठीक है, वी रन, वी आर फ्राइटेंड, एंड परसेप्शन अकॉर्डिंग टू जेम्स कॉजेज द बॉडीली रिएक्शन। परसेप्शन के कारण इवेंट नहीं है, परसेप्शन ने बॉडीली इवेंट कॉज किया है, दैट आर देन एक्सपीरियंस्ड एज इमोशंस, एंड इन अदर वर्ड्स इमोशंस वी फील डिपेंड ऑन व्हाट वी डू, राइट। परसेप्शंस जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस की तरफ, और ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस बॉडीली रिएक्शन जो हैं ये कॉज कर रहे हैं, एंड देन वी एक्सपीरियंस इमोशंस कॉन्सिक्वेंटली। इमोशन डायरेक्टली डिपेंड करता है ऑन द थिंग्स दैट वी डू rather than on perception, right? So according to him, the bodily changes follow the direction of the perception, right? Perception of exciting fact, our feeling of the same changes as our emotion occurs, right? हमारी फीलिंग, तो जैसे ही हमारा एक्ट चेंज होता है उसके बाद हमारी फीलिंग भी चेंज हो जाती है, the way we feel also gets changed. James also believed in the concept of free will. His theory of emotion yields practical advice, act the way you feel. तो वो फ्री विल पे भी बिलीव करते थे, एंड उनकी theory of emotion में भी एडवाइस आती है, he even said कि act the way you want to feel। जैसे किसी पर्सन ने कहा था कि if I am afraid I whistle a happy tune, so he gave his own James Lange theory of emotions।